Students, today we are going to discuss about exercise 8.2, class 9th, chapter 8, quadrilaterals. So first question is, ABCD is a quadrilateral in which P, Q, R, S are the midpoints of the sides AB, BC, CD and AD. AC is the diagonal. Show that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. It is given in the question. So students, I have drawn this quadrilateral from the above figure, and now I am going to prove it that SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. First of all, you should be clear about the midpoint theorem. What is midpoint theorem? I am telling you that if in a triangle the two midpoints of the two sides of the triangle are joined together, then the line formed by these two midpoint is parallel to the third side. Suppose this is the triangle ABC, then DE is parallel to AB. Midpoint theorem. DE is parallel to AB and also DE is equal to half of AB. This is the midpoint theorem, and you have to apply this theorem in this figure. How will you apply this theorem? Suppose this is the diagonal. This AC is the diagonal, and you are taking this triangle ADC, this triangle. In this triangle, you can see here that S and R the midpoints. So applying midpoint theorem here, I am going to prove part number 1 to prove SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC. How will you prove? This S and R are the midpoints. So SR इन दोनों को ज्वाइन किया, इन दोनों को ज्वाइन करने पर आपको एक लाइन मिली और ये मिड पॉइंट से पास करती हुई लाइन आ गई. सो SR इज पैरेलल टू AC according to midpoint theorem. According to midpoint theorem, SR is parallel to AC and SR, because according to midpoint theorem, this line is parallel to this line and also this line is half of this line. So you can write here SR is half of AC. SR is half of AC according to midpoint theorem. So this is the proof of part number 1. Now what is part number 2? PQ is equal to SR. How will you prove that? To prove PQ is equal to SR, how will you prove? Now in this triangle ABC, in triangle ABC, according to midpoint theorem, again according to midpoint theorem, आपको क्या मिलेगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम? PQ इज पैरेलल टू AC. ओके, PQ इज पैरेलल टू AC. अगेन PQ इज हाफ ऑफ AC. PQ इज हाफ ऑफ AC. ये था आपका इन ट्राइंगल. अब ये कौन सी ट्राइंगल थी आपके पास? ACD में. इन ट्राइंगल ACD में आपने यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई की. सिमिलरली आपने मिड पॉइंट थ्योरम ABC में अप्लाई की, तो आपको ये दो कंडीशंस मिल गई. अब इन दोनों कंडीशन से अगर मैं इस कंडीशन को और इस कंडीशन को कंबाइन कर दूं, देन यू विल गेट SR इज इक्वल टू PQ. लेकिन क्यों? क्योंकि AC इज पैरेलल टू SR, AC इज पैरेलल टू PQ, इट मींस SR इज पैरेलल टू PQ. और अगर आप आसान शब्दों में बोलो तो AC और AC की कटिंग कर दो, जो कॉमन है उसको आप एलिमिनेट कर दो और SR इज पैरेलल टू PQ. सिमिलरली फ्रॉम हियर अगर मैं इसको और इसको कंबाइन कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? अगर मैं हाफ ऑफ AC और हाफ ऑफ AC को कट कर दूं, देन PQ इज इक्वल टू SR. PQ is equal to SR. So what you have to prove in part 2, you have to prove PQ is equal to SR. So I have written here PQ is equal to SR. This is the extra information we have got here, and this is the proof of the part number 2. Now in third part you have to prove that PQRS is a parallelogram. How will you prove that PQRS is a parallelogram? This quadrilateral PQRS. How will you prove?
Students, you very well know that if one pair of the quadrilateral is parallel and equal, then that quadrilateral is known as parallelogram. Means अगर आप प्रूव कर दो PQ और SR को पैरेलल और इक्वल, अगर आप SR को PQ के पैरेलल भी प्रूव कर दो और SR को PQ के इक्वल भी प्रूव कर दो, देन यू कैन से दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम. सो आप ये पार्ट नंबर सेकंड में ही प्रूव कर चुके हो. SR इज इक्वल टू PQ एंड SR इज पैरेलल टू, यहां से आप कंबाइन करोगे ये और ये की कटिंग हो जाएगी. SR इज पैरेलल टू PQ आएगा, क्योंकि यहां पर पैरेलल था, यहां पर पैरेलल था, इसलिए यहां पर पैरेलल यूज करेंगे. और SR यहां पर इक्वल था, यहां पर इक्वल था, इसलिए यहां पर इक्वल यूज करेंगे. क्लियर? सो वन पेयर इज पैरेलल एंड इक्वल. तो आप यहां पर क्या लिखोगे? वी नो दैट वन पेयर, if one pair of parallelogram quadrilateral, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो quadrilateral क्या है. One pair of the quadrilateral is parallel and equal, then that quadrilateral is parallelogram. So in this quadrilateral PQRS, so in PQRS, देखो PQ is parallel to SR, PQ is parallel to SR and PQ is equal to SR. One pair is parallel and one pair is equal. Implies PQRS is parallelogram. So this is the proof of third part. Now question number 2. ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of the, यहाँ पर R दो बार लिख दिया, are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. First of all, what is given? You have to write here given. Solution में सबसे पहले given लिखो. ABCD is a rhombus. ABCD is a rhombus. Suppose this is the rhombus. Suppose this is the rhombus. Now I am giving its name A, B, C and D. This is the rhombus. And P, Q, R, S are the midpoints. P is the midpoint, Q is the midpoint, P, Q, R, S. Show that the quadrilateral PQRS is a rectangle. Quadrilateral PQRS is a rectangle. Given ABCD is rhombus. To prove PQRS is rectangle. हमें इसको rectangle proof करना है. If ABCD is a rhombus, then AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. Yes. If AB, BC, CD and AD are equal, then halves are also equal. It means half of AB is equal to half of BC is equal to half of CD is equal to half of AD. These halves are equal. अगर हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. अब मैं PQRS को पहले पैरेललोग्राम प्रूव कर लूं. सो हाउ विल यू प्रूव दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम? मैं क्या करूंगी, यहां पर एक डायगोनल ड्रॉ करूंगी और यहां पर डायगोनल में दूसरा भी ड्रॉ करूंगी. मुझे आगे इसके लिए जरूरत होगी, लेकिन फिलहाल अभी तक यहां पर ऐसे ही. अब देखो बच्चों, यहां पर एक ट्राइंगल बन गई BDC. तो प्रूफ में सबसे पहले इन ट्राइंगल BD एंड C. तो अगर मैं यहां पर मिड पॉइंट थ्योरम लगा दूं तो मेरे पास BD इज पैरेलल टू QR आ जाएगा. BD इज पैरेलल टू QR. ऑल्सो QR इज हाफ ऑफ BD. सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब दूसरी वाली ट्राइंगल ले लो BDA या ABD. In triangle ABD, again SP is parallel to BD, SP is parallel to BD and SP is half of BD.
अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। इन दोनों का रीजन क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, इन दोनों का सेम रीजन आएगा। अब हमें करना क्या है? इन दोनों को पैरेलल प्रूव करना है और इन दोनों को इक्वल भी प्रूव करना है। सो कैसे करेंगे? अब देखो, इसको इक्वल वाली कंडीशन को ले लो, इसको 1 लिख लो, इक्वल वाली कंडीशन को, इसको इक्वल वाली कंडीशन को 2 लिख लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या बताया कि जब भी कंबाइन करो तो इक्वल पार्ट को छोड़कर जो दूसरा पार्ट है उसको ले लो। तो मैंने यहाँ पर इक्वल, यहाँ पर हाफ ऑफ बी डी मेरे पास यहाँ पर भी था, हाफ ऑफ बी डी यहाँ पर भी था, कॉमन पार्ट को मैंने छोड़ दिया तो क्यू आर इज इक्वल टू एस पी आ गया, क्यू आर इज इक्वल टू एस पी। सिमिलरली अगर मैं पैरेलल वाली कंडीशन ले लूं, इसको मैं 1 सपोज कर लूं, इसको मैंने 2 सपोज किया था, इसको मैंने 3 सपोज किया था और इसको मैंने 4 सपोज किया था। तो यहां पर मैं लिख दूं अकॉर्डिंग टू 2 एंड 3, यहां पर मैं थोड़ा सा गलत लिख के 2 एंड 3। और पैरेलल के लिए 1 और 4 लेना पड़ेगा, तो मैं यहां पर लिखूंगी पैरेलल के लिए फ्रॉम 1 एंड 4। 1 एंड 4 से मुझे देखो, यहां पर क्यू आर, यहां पर बी आर प्रेजेंट है, बी डी सॉरी, यहां पर बी डी प्रेजेंट है, तो कॉमन पार्ट को छोड़कर मैंने क्या ले लिया? क्यू आर और एस पी। मतलब क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी। मैंने पैरेलल क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पर पैरेलल और यहां पर भी पैरेलल था। यहां पर मैंने इक्वल क्यों यूज किया? क्योंकि यहां पर भी इक्वल था और यहां पर भी इक्वल था। अब बच्चों क्यू आर इज इक्वल टू एस पी, मतलब कि ये वाली साइड जो है इसके इक्वल हो गई। एंड क्यू आर इज पैरेलल टू एस पी, मतलब क्यू आर यही वाली साइड इसके पैरेलल भी हो गई। Now you very well know that if one pair of the quadrilateral is parallel and equal, then that quadrilateral is known as parallelogram. So again I am writing here, we know that if one pair of quadrilateral is parallel and equal, then quadrilateral is parallelogram. So from this condition, fifth condition and sixth condition. So from fifth and sixth, QR is equal to SP and QR is parallel to SP, implies PQRS is parallelogram. So students, in this case PQRS is a parallelogram. Now I have to prove that PQRS is also a rectangle. For this I am drawing here another diagonal. These are the diagonals of rhombus, and you very well know that diagonals of the rhombus bisect each other at 90 degree. It means angle O is 90 degree. So I am writing here that in rhombus angle O is 90 degree because diagonals of rhombus bisect each other. Okay. Now अब हमें क्या करना है? ये फिगर हम दोबारा देखते हैं। अब देखो ये वाली लाइन, क्योंकि PQRS क्या था? एक पैरेललोग्राम था। Therefore अब यहां पर क्या आ जाएगा कि इसको अगर मैं M सपोज कर लूं, इसको अगर मैं N सपोज कर लूं, इसको मैंने O सपोज कर लिया, अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके भी पैरेलल है, तो उस केस में क्या होगा कि MQ पैरेलल टू OC हो जाएगा। अब MQ why MQ is parallel to AC according to midpoint theorem that PQ is parallel to AC। अगर PQ पैरेलल टू AC है तो PQ का पार्ट और AC का पार्ट भी आपस में पैरेलल होंगे, मींस MQ इज पैरेलल टू ON। सो इन क्वाड्रिलेटरल MQON में क्या लिख सकती हूँ? ऑल्सो इन क्वाड्रिलेटरल MQON क्या लिखूंगी मैं? MQON में MQ इज पैरेलल टू ON and MQ is parallel to ON.
एंड अभी देखो, क्योंकि ये क्यू आर पैरेलल था पी एस के, तो उसका पार्ट क्यू एन का पार्ट क्यू एन और पी एस का पार्ट ओ पी भी पैरेलल होंगे। अब ये और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये और ये भी पैरेलल होंगे। इट मीन्स ओ एम इज पैरेलल टू एन क्यू, ओ एम इज पैरेलल टू एन क्यू। अब ये दोनों पेयर पैरेलल हो गए। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर पैरेलल हो जाएं, तो इसका मतलब क्या होता है कि एम क्यू ओ एन इज अ पैरेललोग्राम। एम क्यू ओ एन इज पैरेललोग्राम। इसका रीजन क्या आएगा? बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल इफ टू पेयर्स आर पैरेलल, अभी मैंने ये दूसरी थ्योरम लगा दी, टू पेयर्स आर parallel, then quadrilateral is parallelogram. So you can write here quadrilateral is parallelogram. अब बच्चों यहां पर देखो एम क्यू ओ एन क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इस केस में ओ और क्यू क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इफ दिस एंगल इज 90 डिग्री देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी इक्वल टू 90 डिग्री। वाई? बिकॉज ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। नाउ अब मैं यहां पर लिख रही हूं, नाउ एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री and angle Q will also be equal to 90 डिग्री। एंगल O 90 डिग्री क्यों हुआ? उसका रीजन मैंने आपको यहां पर बताया। इन रोम्बस एंगल O is equal to 90 डिग्री because diagonals of the rhombus bisect each other। तो यहां पर देखो बच्चों, एंगल O क्या आ गया आपके पास? 90 डिग्री। तो एंगल Q भी 90 डिग्री आ गया। इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ओके, opposite angles of the parallelogram are equal। अब इसके आगे ये 90 डिग्री हो गया। पहले मैं इसको पी क्यू आर एस प्रूव कर चुकी थी। अब पी क्यू आर एस में अगर पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है और उसका एक एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया, देन दैट पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल। सो इन दिस वे यू कैन प्रूव दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने प्रूव किया पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। फिर मैंने एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दिया। अगर मैं किसी पैरेललोग्राम के एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव कर दूं, देन पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल बन जाएगा। देन पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। सो इन दिस वे आई हैव प्रूव्ड दिस क्वेश्चन नंबर 2। Now question number 3, ABCD is the rectangle and PQRS are the midpoints of the sides AB, BC, CD and DA respectively. Show that the quadrilateral PQRS is rhombus. ABCD is a rectangle. So मैंने यहाँ पर एक rectangle बनाया A, B, C, D। उसके midpoint ले लिए PQRS, PQRS। PQRS को ज्वाइन करने पर मुझे एक फिगर मिल गई और इस फिगर को मुझे रोम्बस प्रूव करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर एक डायगोनल बनाएंगे। ये डायगोनल बनाने से मैं मिड पॉइंट थ्योरम यहां पर लगा सकती हूँ। सो इन ट्राइंगल सोल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, क्योंकि गिवन और टू प्रूव लिखने से हमें मार्क्स फुल मिल जाएंगे। सो गिवन में क्या आएगा? ABCD इज रेक्टेंगल। ABCD इज रेक्टेंगल। और हमें गिवन क्या है? सेकेंड नंबर पर P, Q, R एंड S आर मिड पॉइंट्स। दीज आर मिड पॉइंट्स। क्लियर? सो AP इज इक्वल टू PB, BQ इज इक्वल टू QC, CR इज इक्वल टू DR एंड DS इज इक्वल टू AS। ये लिख सकती हूं मैं। टू प्रूव में क्या आएगा? टू प्रूव शो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज रोम्बस। PQRS इज रोम्बस। इसको हमें रोम्बस प्रूव करना है। सो बहुत सिंपल है। पहले PQRS को पैरेललोग्राम प्रूव कर दो। कैसे प्रूव करेंगे? अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। सो मैं यहां पर प्रूफ में क्या लिखूंगी? इन ट्राइंगल ABC और दूसरी तरफ में ट्राइंगल ADC ले लूंगी। इन ट्राइंगल ADC दोनों पे मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊंगी। अब मैं बार बार यहां पर नहीं लिखूंगी अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, यू हैव टू राइट बाय योर सेल्फ। PQ इज पैरेलल टू AC, PQ is parallel to AC and PQ is half of AC. PQ is half of AC. इसी तरह से SR is parallel to AC and
SR is half of AC. SR is half of AC. तो यहां से बच्चों जब हम पैरेलल वाली कंडीशन को आपस में ज्वाइन करेंगे तो AC और AC को कट करेंगे और मुझे क्या मिलेगा, PQ इज पैरेलल टू SR। इसी तरह से जब मैं इन दोनों कंडीशंस को, इक्वल वाली कंडीशंस को आपस में कंबाइन करूंगी और हाफ AC और हाफ AC को ना लेकर जब मैं PQ इज इक्वल टू SR ले लूंगी तो मुझे ये मिलेगा। इन दोनों से मुझे क्या मिलता है कि PQRS इज पैरेललोग्राम। Why PQRS is parallelogram? Because in quadrilateral one pair is parallel and also equal, is parallel and equal. It means PQRS is parallel, parallelogram. अब PQRS को मैंने पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। अब मुझे इसको क्या प्रूव करना है, rhombus. Rhombus means all the sides of the rhombus are equal. It means we have to prove that this side is equal to this side. उससे पहले मैं यहां पर लिखूंगी PQRS अगर पैरेललोग्राम है तो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू SR, क्योंकि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। PQ इज इक्वल टू SR, तो मैं यहां पर लिखूंगी PQ इज इक्वल टू SR और मुझे क्या लिखना है, ये ऑपोजिट साइड SP इज इक्वल टू RQ। SP is equal to RQ. This is equation number स्टार लिख लो इसको, और this is equation number डबल स्टार। ओके, नाउ इन ट्राइंगल अब मैं क्या करूंगी, इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूंगी। कैसे? इन ट्राइंगल APS एंड BPQ, APS एंड ट्राइंगल BPQ, इन दोनों ट्राइंगल्स में मुझे क्या मिलेगा, AP इज इक्वल टू BP, क्योंकि मैं पहले लिख चुकी हूं यहां पर AP इज इक्वल टू PB बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। AP इज इक्वल टू PB। अभी मुझे और क्या मिलेगा, AS इज इक्वल टू BQ, ये भी मैं यहां पर लिख चुकी हूं। कहां लिखा मैंने, AS इज इक्वल टू BQ। क्यों इक्वल होगा, तो इसका रीजन मैं आपको यहां पर बता दूं, वो मैं साइड में बता देती हूं आपको। AS इज इक्वल टू BQ, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि AD और BC इक्वल हैं। यहां पर इसका रीजन दे देते हैं, AD और BC इक्वल हैं तो उन दोनों के हाफ भी इक्वल होंगे। AD का हाफ क्या आएगा, AS आएगा, और BC का हाफ क्या आएगा, BQ आएगा। सो दिस इज द रीजन व्हाई AS एंड BQ बोथ आर इक्वल। सेकेंड केस आपके पास क्या है, 90 डिग्री। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री। सो एंगल A एंड एंगल B बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री, each 90 degree. It is given in the question. So according to which rule? According to SAS rule. We can write here, according to SAS, triangle APS is congruent to triangle BPQ. Okay? ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो SP और PQ इक्वल हो गए। इट मीन्स SP इज इक्वल टू PQ बाय CPCT, ये CPCT से इक्वल हो गए। दिस इज इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार। अब ट्रिपल स्टार, स्टार और डबल स्टार को हम कंबाइन करेंगे। देखो हम स्टार्ट करते हैं कहां से, स्टार से स्टार्ट कर लेते हैं। तो PQ इज इक्वल टू SR मिलेगा। अब SR किसके इक्वल, RQ के इक्वल मिलेगा, और यहाँ पर SP किसके इक्वल, PQ के इक्वल। तो यहाँ पर SP मिल गया। अब मुझे सारी साइड्स क्या मिल गई, इक्वल मिल गई। सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, सिंस ऑल साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम PQRS are equal, therefore PQRS is rhombus. So this is the proof of question number 3. Now question number 4, ABCD is a trapezium. मैंने यहां पर ट्रेपीजियम बनाया ABCD, in which AB is parallel to DC, in which AB is parallel to DC. So it is given in the question. Okay, BD is the diagonal and E is the midpoint of AD. E is the midpoint of AD, ये भी given में आएगा। E is midpoint of AD. BD is the diagonal,
ये मैंने BD डायगोनल ड्रॉ कर लिया, BD इज डायगोनल, ये सब कुछ गिवन में आएगा। उसके आगे टू प्रूफ, टू प्रूफ में क्या आएगा, अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू द AB। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि AB के पैरेलल है। क्लियर? सो इस पॉइंट का नाम मैंने सपोज M दे दिया। इंटरसेक्टिंग BC एट F, उसने BC को F के ऊपर इंटरसेक्ट किया। शो दैट F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मुझे F को मिड पॉइंट प्रूव करना है। टू प्रूव F इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो मैं कैसे प्रूव करूंगी इसको, मिड पॉइंट कैसे प्रूव करूंगी? तो बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहले मैं ये वाली ट्राइंगल ले लूं, ये वाली ट्राइंगल मैंने ली। तो इस ट्राइंगल में DAB में अब यहां पर E क्या है, मिड पॉइंट है, और EM क्या है, पैरेलल टू AB है। क्यों? क्योंकि EF एक पैरेलल टू AB है। अगर EF पैरेलल टू AB होगा तो उसका पार्ट, EF का पार्ट EM भी पैरेलल टू AB होगा। क्लियर? सो इम्प्लाइज M इज द मिड पॉइंट। क्यों? अकॉर्डिंग टू, इसका रीजन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ द थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर? अब बच्चों हमने ट्राइंगल ले ली ये वाली, इस ट्राइंगल में मैं क्या लिखूंगी, इन ट्राइंगल DBC, इस ट्राइंगल में M मिड पॉइंट, क्योंकि मैं प्रूव कर चुकी M इज द मिड पॉइंट, M इज मिड पॉइंट एंड MF इज पैरेलल टू DC, MF इज पैरेलल टू DC बिकॉज, अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, बिकॉज EF इज पैरेलल टू DC, EF इज पैरेलल टू DC। अगर EF DC के पैरेलल है और EF MF के भी, तो EF का पार्ट MF भी पैरेलल टू DC होगा। अब EF पैरेलल टू DC क्यों है, क्योंकि AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, इसलिए EF भी पैरेलल टू DC ही होगा। सो अकॉर्डिंग टू, अगेन अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या होगा, अगर M से एक पैरेलल लाइन ले जाएं तो F भी एक मिड पॉइंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम F इज मिड पॉइंट। दिस इज द प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 4. So students, you can do question number 5 by yourself. So this is all about exercise 8.2. You can do question number 5 by yourself. If there is any confusion, please do ask me.